Hello everyone, welcome back to Knock Knock Air Education, and I hope all of you are doing good. So as all of you have seen all the lectures on integral calculus, so the course is about to finish, and today is going to be hopefully the last session on this course, integral calculus. So in our previous classes we have seen that there are few concepts that we have learned which are not being mentioned in the syllabus, but still we have learned them because they are going to help us in the exam, and basically they will reduce our time for calculating the answers. So that's why I have given those concepts to you, and your job is to learn all those formulas that I have gave you related to beta gamma function, all the tricks that I have gave you, and then I have told you about the Dirichlet theorem and the Liouville's theorem. So you need to learn the formula for the theorem or the integral, there we apply the formula. Okay, so that will reduce your time. So now there is only one topic which is left, and that is surface area. So today we will try to cover surface area also, and there is a also very small concept of length of the curve, which is very simple 10 minutes topic that we will also do, because if question comes from that topic then we are able to solve that. So in 2 to 3 years before they have asked a question from the length of the curve, so I will give you a idea about that also, but first we will try to cover about the surface area. Okay, if you observe one thing, then you will see that surface area is a topic that is basically related to vector calculus. Okay, but since you know that vector calculus is now not the part of your syllabus, so I will not go into that much of detail. Earlier I used to discuss this topic in a very detailed form, from where the formula is coming and what is actually the meaning of all the terms, but because that was the need of the course of the vector calculus. But now you know that vector calculus has been reduced or has been deleted from your syllabus. Now they have only integral calculus as a part of the syllabus, as you know, if we talk about IC and VC. So we will just understand that much portion about this topic that can help us in exam. Okay, so whenever you will be asked to find out the surface area, that is, you will be given a surface and you will be asked to find out the area of that surface, then you will use a formula that is equals to R. This is your gradient of del f. Then in the denominator part you have gradient of del f dot p dA. Okay, so right now you will be a little bit confused about what all these terms mean, but don't worry, I'll explain each and every term. Okay, but before explaining these terms, let me just go a little bit basic concept about this. This is called as your gradient. This is an operator. Okay, this is an operator. You call it by name, either you call it del, or sometime you call it nebula, or sometime you can also call it as grad or gradient. Okay, so what we will be doing, we'll just understand, because in question I'll be asking you to evaluate del f, then you will be confused how we will get it. That's why I'm explaining you. This operator is equals to I del by del x plus j del by del y and plus k del by del z. Okay, so this is a vector operator, and it always operates with a scalar valued function. Okay, here f is going to be a scalar valued function. So now what it will be, I cap del by del x plus j cap del by del y plus k cap del by del z. और अब जब हम इसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे f में, सो हाउ इट विल बी I cap del f by del x प्लस j cap del f by del y प्लस k cap del f by del z. ठीक है, अगर हमारे सिलेबस में वेक्टर कैलकुलस होती तो आपको शायद पता होगा, जिन बच्चों ने ऑलरेडी मेरे से पढ़ा है, कि ग्रेडियंट ही खुद 3 दिन का टॉपिक है. इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे. सो पिछले 2 साल मैंने पढ़ाया भी है. लास्ट ईयर जब सिलेबस चेंज होने से पहले ही मैंने इसको कंप्लीट करा दिया था, बट बाद में पता चला कि सिलेबस चेंज हो गया है. सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि
इसको हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि सरफेस एरिया का क्वेश्चन लग जाए, बहुत डिटेल में हम नहीं जाने वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो एक ऑपरेटर है जिसको हम स्केलर वैल्यूड फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं, और कुछ ऐसे रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा जहाँ पे डेल बाई डेल एक्स आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल बाई वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेल बाई डेल जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड। ओके, अब ये तो हो गया, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि अब डेल एफ हमारे पास क्या है। अब ऑब्वियस सी बात है, डेल एफ जो है वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मॉड वैल्यू बोली है तो हम मॉडुलस ऑफ डेल एफ भी तो निकाल सकते हैं ना। वो क्या बनेगी, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज योर डेल एफ बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, प्लस दिस विल बी योर डेल एफ बाय डेल वाई होल स्क्वायर, and then this will be plus del f by del z whole square, right? So this one is going to be the value of mod del f. Now comes a term, what is this mod del f dot p, dA and r. Okay, now you observe one thing, because we are working in 3D, right? That is why we are talking about the surface, and you have been asked to find out the area of that surface. So we are working in the what, double integration. It means r is going to be what, r is going to be the projection of your surface, right? Projection of your surface that is being given to you. And then what will happen, if r is going to be the projection, so in 2D you will get a region, right? So that region is the region which you obtained by projecting the projection of the surface that is being given to you. अब फिर प्रॉब्लम आती है कि ये P क्या है, ये P जो होगा हमारे पास दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस S दैट विल बी गिवन टू अस। तो अब किसी सरफेस पे हमें अगर आउटवर्ड नॉर्मल निकालना होता है तो वो हम कैसे निकालते हैं, कि जो भी सरफेस की इक्वेशन दी होती है उस सरफेस की इक्वेशन का ही अगर आप ग्रेडियंट ले लो तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, मतलब क्या है कि सपोज अगर हमारे पास ये एक सरफेस है, इसकी इक्वेशन आपको फाई करके कुछ दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको इस पे एक आउटवर्ड नॉर्मल निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, डेल फाई हो जाएगा। और अगर यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल निकालने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, इसी को इसकी मॉड वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो दैट इज गोइंग टू बी यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें अगर हम वीसी का कोर्स पढ़ते तो और भी डिटेल में करते, इसी के कुछ 4-5 टाइप के क्वेश्चंस भी करते, बट अभी वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो पी समझ आ गया। अब ये डीए क्या है, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम आपको डीए को dx dy ही लिख देना चाहिए था। नो, इट्स नॉट द केस। ओके, अगर आपने प्रोजेक्शन जो है वो एक्स वाई प्लेन पे लिया है, राइट, एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लिया है, तो योर डी ए विल बी इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई। इफ यू हैव टेकन योर प्रोजेक्शन, ओके, इफ यू हैव टेकन योर प्रोजेक्शन इन वाई जेड प्लेन, then what will happen, then your dA will be equals to what, dy dz. If your projection has been taken into xz plane, then your dA will be equals to what, dx dz. So this will vary according to your projection or according to the plane in which you are taking the projection. So these things you have to keep in your mind. Now I think everything is sorted. Okay, you know that what is this del f. Okay, the surface equation will be given to you. You can find out this del f very easily. Okay, then this p is going to be the outward normal to the surface. That also you can evaluate. Projection जहाँ पे लिया है उस पे आपको यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल निकालना है, एंड ये फॉर्मूला है, ठीक है। अभी भी आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा, बट डोंट वरी, ओके। ऐसा ही होता है क्योंकि जब तक बीसी का फुल कोर्स ना पढ़ो, डिटेल कोर्स ना पढ़ो, तो आईसी का कोर्स पढ़ने जाओ, यू विल फील द सेम थिंग, फाइन। बट एज सुन एज वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, इट विल बिकम वेरी सिंपल टू यू, ठीक है, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। बट उससे पहले एक चीज़ और, आपको एक फॉर्मूला और हेल्प करेगा सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है। ये तो था कि सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, दैट फॉर्मूला विल ऑल्सो हेल्प यू, बट वो कभी कभी क्या हो जाता है, कहीं कहीं पे नहीं लगता है, दैट इज़ वाई वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम वो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट विल हैपन कि आपके पास जो आपकी सरफेस की इक्वेशन दे रखी होगी
वहाँ पे आप z को एक्सप्रेस कर पा रहे होगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y. ओके, इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू. अगर एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो देन व्हाट यू हैव टू डू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला. 1 प्लस दिस इज योर del z बाय del x होल स्क्वायर प्लस del z बाय del y होल स्क्वायर and then dx dy over the region R. You know very well that we are taking the projection into xy plane, that is why we have kept dA is equals to dx dy, and z is in terms of x and y. So obviously what we are doing, we are converting everything into x and y. This formula is going to be the most easiest formula for all of you. आप इसको याद कर सकते हो. अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पे दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल हो रहे हैं. तो ईदर यू लर्न दिस और दैट, बोथ विल हेल्प. बट यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं होती हैं, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है. सो इट्स बेटर कि आप दोनों फॉर्मूले को याद रखो, यूज़ आप भले ही इसको करो. बट यहाँ पे अभी मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय बोथ द वेज. ओके, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर लो. ठीक, so one by one we will do few questions. Even if you didn't get these concepts, with the help of the question you will be able to understand everything. ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम. पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस. फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस. और सरफेस आपको क्या दी है अभी बताते. कट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैराबोलॉइड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल्स टू 4. फाइन, आपको ये काम करना है. अब सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा 3D के सरफेसेस के बारे में. आपको ये बोला है दिस इज पैराबोलॉइड. ओके, एंड आई होप आप सबको पता होगा ये हमारे पास अगर z एक्सिस है तो पैराबोलॉइड जो है वो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, एंड फिर बोला है z इज इक्वल्स टू 4, एक प्लेन ने इसको कट किया है. अब देखो, आप जब z इज इक्वल्स टू 4 एक प्लेन कट करेगा, इसको आप ऐसे नहीं इमेजिन कर पाओगे. मैं आपको एक रियल लाइफ रिलेटेड एग्जांपल देती हूँ जिसकी हेल्प से आप समझ जाओगे. ठीक है, ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन अ बोल इन योर किचन्स, राइट. एक बोल आपने लिया एंड देन व्हाट यू डिड कि आपने उस बोल को एक पेपर रख दिया उसके ऊपर. फाइन, तो ऐसा नहीं लग रहा है आपको सिमिलर स्ट्रक्चर डेवलप हुआ. पैराबोलॉइड था और जो आपका पास पेपर था वो एज अ प्लेन की तरह काम कर रहा था. सो नाउ यू ऑब्जर्व कि जो पेपर ने उस आपके बोल को कट किया है, तो देखो वहाँ पे एक आपके पास ऐसा सर्कल जैसा आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा. देखो, सो बेसिकली आप क्या करो, अगर आप एक चेयर पे बैठे हो, टेबल है, ओके, आपने उसके सामने अपने हाथ पे एक बोल लिया और उसके बाद उस पर एक पेपर रख दिया, तो आप देखो उसकी एक शैडो बनेगी टेबल पे, और वो शैडो क्या हो रही होगी, एक सर्कल हो रहा होगा. और ये क्या है, ये तो एक्स वाई प्लेन है ना, यानी z इज इक्वल टू 0. एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू 0. उस पर प्रोजेक्शन क्या पड़ रहा है, सर्कल पड़ रहा है ना. और वो सर्कल कि रेडियस क्या होगी, ये सर्कल बना कैसे, जब z इज इक्वल टू 4 प्लेन ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई किया. मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब ये. तो जो प्रोजेक्शन बना हमारे पास वो कहाँ बना, एक्स वाई प्लेन पे बना, और इस तरीके का कुछ डायग्राम बन रहा है. तो आपके पास यहाँ पे सरफेस आपको निकालना है, वो सरफेस जो जनरेट हुई जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड पैराबोलॉइड को z इज इक्वल्स टू 4 प्लेन ने कट किया. तो उस सरफेस का एरिया निकालना है. तो उसके लिए हमने क्या किया, उस सरफेस का हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन पे. तो वो प्रोजेक्शन क्या निकला, एक सर्कल निकला जो हमारे पास ये. अब प्रोजेक्शन आपने कहाँ लिया है, z इज इक्वल टू 0 प्लेन पे. और मैंने आपको समझाया था p क्या है कि आपको वहाँ पे क्या निकालना है, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर निकालना है. तो वो क्या होगा, सपोज आपके पास फाई दिया है z इज इक्वल्स टू 0, तो आप डेल फाई ही तो निकालोगे. तो जब डेल फाई का मतलब डेल z, तो मतलब क्या आई डेल z बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल z बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल z बाई डेल z.
अब z है तो विद रिस्पेक्ट टू x एंड y तो 0 मिलेगा, 1 आ जाएगा ना। तो k कैप मिल रहा है सिर्फ हमको कि नहीं मिल रहा है, z इज इक्वल्स टू 0। इस पे जब आप निकालोगे क्या अपना जो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है तो वो तो k कैप बन गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला था, सरफेस की इक्वेशन से आप क्या निकालोगे, जो मैंने आपको फॉर्मूले में ग्रेडियंट ऑफ f लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी हेल्प से आप वो निकालोगे। तो f क्या बना आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। तो अब आप डेल f निकालने जाओगे तो यानी कि आई कैप ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, जे कैप ऑफ डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, प्लस के कैप ऑफ डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। तो ग्रेडियंट ऑफ f क्या बन गया, देखो 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप एंड माइनस का k कैप, राइट। नाउ व्हाट डू वी वांट, अब डिनोमिनेटर में एक टर्म हमें और दे रखी है, अगर आप ध्यान से देखो, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट p, क्योंकि दोनों ही वेक्टर हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं उनका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट p निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, देखो अगर आप यहाँ वैल्यू रखोगे p k कैप है और ये तो ये -1 आ जाएगा, लेकिन हमें तो मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f डॉट p रखना है तो वो क्या, वो तो 1 ही आ जाएगा। फिर हमें मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f भी चाहिए, ये क्या आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब हमें ये सारी चीज़ें असेंबल कर देनी है अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला वॉज r then modulus of gradient of f divided by modulus of gradient of f dot p then dx dy, क्योंकि हमने xy प्लेन पे प्रोजेक्शन लिया। ये क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f डॉट p 1 था, dx dy, और ये r हमारे पास क्या था, जो प्रोजेक्शन हमने लिया वो बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब देखो कहानी पूरी डबल इंटीग्रेशन पे चली गई ना, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब हम इसमें पोलर फॉर्म लगा सकते हैं, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई एंड देन योर r इज फ्रॉम 0 to 2 देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर dx dy इज योर r dr d थीटा। यहाँ पे 4 भी आएगा, ओके, दिस इज गोइंग टू बी 4r स्क्वायर। और अब ये सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम हो गया ना, 1 प्लस 4r स्क्वायर को हम क्या लेट कर ले t, तो 8r dr इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt। सो व्हाट इट विल बी, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई देन इट विल बी रूट t, ठीक है। और r dr को हम क्या लिख सकते हैं, dt बाई 8 एंड डी थीटा को एज इट इज रख दिया। अभी हम t में कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हम r की ही लिमिट लगा देंगे, ठीक। तो क्या बना, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई 1/8 हमने यहाँ रख दिया, ठीक। ये क्या बनेगा, t रेज टू द पावर 3/2 देन 2/3। अभी हम लिमिट नहीं लगा रहे। नाउ व्हाट वी विल डू, 1/8, अब देखो थीटा के रिस्पेक्ट में भी करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2/3। और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 प्लस 4r स्क्वायर, वो रख दो। और अब आप लगाओ r की लिमिट, कहाँ से कहाँ, 0 से 2, और अब आपको मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया हो। क्या किया, सरफेस की इक्वेशन को f मानेंगे, उससे ग्रेडियंट f निकालेंगे, प्रोजेक्शन जहाँ पे निकलेगा उस कर्व को हम r मतलब डोमेन मानेंगे, और उससे ही हम डिसाइड करेंगे कि हमारा आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर क्या है, और फिर फॉर्मूले में सारी चीज़ें असेंबल कर देंगे एंड देन वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। अब आप देख लो एक चीज़ और, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स 8, ठीक है। तो क्या बना, π/6 बन गया। फाइनली आंसर भी लिख देती हूँ, π/6। और यहाँ पे 1 प्लस 4r स्क्वायर है, r की लिमिट कहाँ से है, 0 से 2, आई थिंक यही था, हाँ। उसके बाद अब देखो यहाँ क्या आएगा, π/6, जब आप 2 रख रहे हो, ये पावर 3/2 थी, 2 रखोगे तो क्या बनेगा, देखो 17 आएगा, बिकॉज 4 × 4 16 + 1 17, एंड माइनस हमारे पास जब ये रखोगे 3/2, और माइनस क्या बनेगा, जब r की वैल्यू 0 रखा 1, तो देखो ये आंसर बन रहा है π/6 17 raised to the power 3/2 -1. This is the answer for this question. So question was very simple, but you have to apply few things. Now I told you one formula, उस पर भी काम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सरफेस की इक्वेशन आपको ये दी थी ना, और मैंने आपको बोली थी एक चीज़ कि सरफेस की इक्वेशन से अगर आप z को एक्सप्रेस कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ xy, कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने आपको,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जेड एक्स मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स, देन डेल जेड बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई। कुछ नहीं करना आपको। और प्रोजेक्शन में आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मिला। तो आपने जब वैल्यूज़ रखी तो क्या मिला, यहाँ देखो जब आप जेड एक्स निकालोगे तो 2x आ रहा है, 4x स्क्वायर आ गया। जेड वाई निकालोगे 2y आ रहा है, 4y स्क्वायर आ गया, डी एक्स डी वाई। और अब तो आपको सब कुछ पता ही है ना क्या करना है, पीछे जो हमने सॉल्व किया वही चीज़ है। तो इसलिए मैंने बोला पहला वाला फॉर्मूला थोड़ा आपको सिंपल मतलब नहीं लगेगा, बट जो दूसरा ये वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया ये आपको बहुत सिंपल लगेगा और ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं जो हमने देखे उस हिसाब से, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द कैप, फाइंड द एरिया ऑफ द कैप cut by sphere x square plus y square plus z square is equals to 2 where your z is greater than equal to 0 by the cylinder एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम 3D में जो सरफेसेस हैं उनको समझ लें तो थोड़ा काम आसान भी हो जाता है। अब क्या बोला है, एक स्फेयर है, उसको जब सिलेंडर कट कर रहा है तो ऊपर एक कैप बन रही है, उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गई कि हमारे पास ये स्फेयर बन गया। वैसे तो आप लोग जो बनाते हो वो सर्कल जैसा दिखता है, बट अगर आप देखोगे तो ये स्फेयर जैसा दिखेगा। ठीक, अब इस स्फेयर की रेडियस पे ज़रा ध्यान रखना, वो क्या है, इसके लिए जो रेडियस है वो √2 है। ठीक, मतलब 1 पॉइंट समथिंग। और ये जो हमारे पास सिलेंडर दिया है उसकी रेडियस कितनी है, 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सिलेंडर है वो यहाँ कहीं से जा रहा होगा। आप सबको इसके बारे में आइडिया होगा ही, आई थिंक। ऐसे 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 करते चले जाओ तो सिलेंडर बन जाएगा ना हमारे पास, उसकी बात करिए। ठीक है, तो ये बन गया। अब आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे देखो, ये जो सिलेंडर है वो जब इस स्फेयर को कट कर रहा है, ये कैप जनरेट हो रही है यहाँ पे कि नहीं जनरेट हो रही, जनरेट हो रही है ना। और हमको क्या करना है, इसी का क्या करना है, ये जो कैप जनरेट हुई है इसी का हमें सरफेस एरिया निकालना है। अब वही है, प्रोजेक्शन पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। हमें ये देखना है कि जब इस सिलेंडर ने इस स्फेयर को कट किया तो प्रोजेक्शन क्या बन रहा है। तो आप देखो एक सर्कल ही तो बन रहा है। और अब आप लोग गलती क्या करोगे मैं बताती हूँ। अब आप में से बहुत सारे बच्चे, जैसा कि आपको पता है प्रोजेक्शन है, z को 0 कर दो मैम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ये मैम प्रोजेक्शन बन जाएगा। और यही हमारी गलती होती है, जबकि जो रीजन बना है, जो फिगर बना है, वो खुद में ही सारी चीज़ें आपको कहने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ठीक से देखोगे भाई, जब इस सिलेंडर ने इस स्फेयर को कट किया है तो यही तो बन रहा है सर्कल। प्रोजेक्शन जब एक्स वाई प्लेन पे लोगे तो यही तो बनेगा। तो भाई उसकी रेडियस क्या होगी, 1 ही तो होगी, √2 कैसे हो जाएगी। बस ये समझना है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब तो सब कुछ क्लियर ही है क्या करना है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, बट आपको आइडिया दे दूँगी, तो आप आंसर निकाल लेना। ठीक है, चलो दोनों तरीके से बताऊँगी, पर ठीक। पहला तरीका, पहले मैंने बोला सरफेस की इक्वेशन जो दी होगी उसको आप f मानोगे, तो वो क्या है, उसको पूरा आपको ऐसे मानना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, जो भी है, कुछ भी टर्म मिस नहीं करना। ठीक, तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ f निकाल लोगे, 2x i कैप 2y j कैप एंड प्लस 2z k कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रोजेक्शन तो आपने एक्स वाई प्लेन पे लिया है, तो p हमारे पास क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, देखो अब बस मॉडुलस वैल्यू निकालनी है, तो मॉडुलस वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आप देखोगे मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f निकालोगे, वो क्या बनेगा, अब 2 तो बाहर ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f डॉट p निकालोगे, तो मतलब मॉडुलस किसका निकालना है, 2z का, तो वो 2z आ जाएगा, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि z हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक, r हमें पता ही है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब सारी इन्फॉर्मेशन है, फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं सबको। तो सरफेस एरिया क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
ठीक है। मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट पी क्या था 2z, यहाँ क्या आएगा dx dy। ठीक, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे लॉजिक क्या है मेरा, अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू तो 1 है, तो क्यों ना हम वही रख दें, बट ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 तो हमने प्रोजेक्शन लेने के बाद बनाया है। मेन सरफेस तो हमारी ये वाली है ना, जो कि स्फेयर वाली है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा z टर्म कभी भी इस पूरे इंटीग्रल में आता है तो उस z को रिप्लेस किससे किया जाएगा, उस z को रिप्लेस किया जाएगा विद द इक्वेशन ऑफ द सरफेस, ना कि प्रोजेक्शन वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो 2 के बराबर है, तो √2 आ गया। और z की वैल्यू जब आप लिखोगे तो क्या आएगी, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। एंड आई थिंक अब आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। थीटा क्या बनेगा 0 से 2 पाई, r क्या बन जाएगा 0 to 1 √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आर स्क्वायर देन r dr d थीटा। अब ये बेसिक सा सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब दूसरे फॉर्मूले से बताती हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 दिया था, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी दिया था, प्रोजेक्शन वाली बात यहाँ पे भी लग जाएगी। तो यहाँ से देखो z की 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन हम कौन सी चूज करने वाले हैं, हम पॉजिटिव चूज करेंगे क्योंकि z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है। इट मीन्स वी आर एबल टू एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, राइट। और अब बस फॉर्मूला लगा दो अपना जो मैंने सिखाया हुआ है, क्या 1 प्लस zx होल स्क्वायर प्लस zy होल स्क्वायर dx dy। ठीक, अब यहाँ zx निकालोगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई तो कांस्टेंट है, ये आ गया। zy निकालोगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक माइनस और आएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड माइनस 2y। तो बस रख दो चीज़ों को यहाँ पे, लेकिन माइनस है पर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या मिलेगा आपको वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। अब आपने क्या करना है, एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, √2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या, अब आप पीछे देखो जरा, हमने जो सॉल्व किया था वही तो हमने निकाला था, सेम वैल्यू निकाली थी ना। तो आपको जो आसान लगे अब आप उसकी हेल्प से सॉल्व कर लो। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब ये तो थे वो क्वेश्चन जो मैंने आपको अपनी तरफ से दिए और मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी। अब सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं सरफेस एरिया के, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं और फिर हमारा ये जो काम है वो फिनिश हो जाएगा सरफेस एरिया से रिलेटेड। पर अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं इस मेथड 2 से ही करूँगी। ठीक है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। Method 1 is not that much important, but always keep that method with you. That will help you out. Sometimes क्या होगा, अगर z को आप easily express नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो आपकी help करेगा। ठीक है, तो let's just discuss that. Fine. So our question number 1 that we will be discussing is 2016 में पूछा गया है। क्या question है, let me write down. The surface area of the portion of the plane what is that equation of plane, y plus 2z is equals to 2 within the cylinder what is that, x square plus y square is equals to 3s। एंड एक चीज़ और मैंने ये जो इस बार पढ़ाया था बच्चों को सरफेस एरिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा सा इक्वेशन में फ़र्क हो गया था, रेडियस बदल दी गई थी और सरफेस एरिया का बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आया। लास्ट टाइम ऑल्सो द सेम थिंग हैपन। ठीक है, लास्ट टाइम की बात कर रही हूँ मैं। सो इसलिए मैंने बोला सरफेस एरिया को बस यही 2 फॉर्मूले, लास्ट वाला फॉर्मूला भी याद कर लो तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बच्चों को मैंने एग्जाम के 10 दिन पहले बोला सरफेस एरिया पढ़ लेना, उसका फॉर्मूला बताया, ये सारे PYQs करा दिए गए और जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको 2 कराए उनमें से ही एक क्वेश्चन आया, बस रेडियस बदल दी गई।
तो इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, आप उन बच्चों से पूछ भी सकते हो, ठीक है। 3√5 पाई बाई 2, देन यू हैव 5√5 पाई बाई 2, देन सी ऑप्शन है 7√5 पाई बाई 2 एंड लास्ट ऑप्शन है 9√5 पाई बाई 2, ठीक है। तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, एक प्लेन है, सिलेंडर उसको कट कर रहा है, तो मैंने आपको बोला कि भाई क्या करो, सरफेस की जो इक्वेशन थी, क्योंकि प्लेन सरफेस है ना, उसमें z को आप एक्सप्रेस कर लो किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो क्या मिलेगा 1, देन माइनस का y बाई 2। अब आप अपना फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जेड एक्स निकालोगे 0 आ रहा है, जेड वाई निकालोगे माइनस का 1 बाई 2, तो 1 प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर, देन ये 1/4 आ जाएगा एंड दिस इज योर डी एक्स डी वाई। अब ये क्या दिया है हमको, ज़रा ध्यान से देखो, ये प्रोजेक्शन दिया है हमको, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ये अब देखो सिंपली कोई लिमिट भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 5/4, तो वो √5/2 आ जाएगा एंड ये डी एक्स डी वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ द सर्कल को ना। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और √5 पाई/2 आर स्क्वायर कितना है 3, आंसर कितना आया 3√5 पाई/2। देखो आंसर आ गया ना। इतनी सी चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमको, जितनी चीज़ें समझनी है सिर्फ उतनी समझो, अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास 2017 में आया हुआ है 2 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द सर्फेस, the area of the surface, then here you have z is equals to xy by 3 intercepted by, अगर आपको आइडिया भी नहीं भी है ना कि ये सरफेस बन कैसे रही है, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं जहाँ पे आपको सब कुछ क्वेश्चन में ही दिख रहा है, ये भी नहीं सोचना है कि प्रोजेक्शन क्या बन रहा है, ठीक है। बाय द सिलेंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 लाइज इन दी, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं क्या, 20 पाई टू 22 पाई, देन बी ऑप्शन आपको दे रखा है 22 पाई टू 24 पाई, सी ऑप्शन यू हैव फ्रॉम 24 पाई टू 26 पाई। अब डायरेक्ट वैल्यू ना पूछ के ऐसा पूछ लिया कि कौन से इंटरवल में जो वैल्यू है वो लाई करेगी, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर आइडिया लेना चाहो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया, एक जनरल आइडिया देती हूँ। सपोज ये कोई प्लेन है, ठीक है, इसको ये सिलेंडर कट कर रहा है, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये जो प्रोजेक्शन है वो सर्कल ही तो बन रहा है, तो वो इस सिलेंडर की रेडियस का तो होगा ना। तो इसीलिए हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी जो प्रोजेक्शन है वो क्या लिया है, सर्कल की इक्वेशन ली, मतलब सिलेंडर लिया है। इतनी सी चीज़ है, बस ये समझ जाओ तो कुछ नहीं बचता फिर क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, अब देखो z कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो बस आपको जेड एक्स निकालना है, वो क्या आ रहा है y/3, जेड वाई निकालना है, वो क्या आ रहा है x/3, फॉर्मूला लगाओ आप अपना, और ये आपको क्या दिया है, आपका प्रोजेक्शन दिया है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जेड एक्स का होल स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर बाई 9 एंड दिस इज योर एक्स स्क्वायर बाई 9 डी एक्स डी वाई। देखो पोलर फॉर्म में सारी चीज़ें कन्वर्ट हो गई ना, 1/3 ये क्या बना है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये क्या बन गया आपके पास 1/3, थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई, आर इज फ्रॉम 0 to 4 क्योंकि रेडियस 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस आर स्क्वायर देन आर डी थीटा। अब अगर आप कहो तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही कर देती हूँ। 0 to 2 पाई एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 था आई थिंक, या 9 प्लस आर स्क्वायर देन वी हैव आर डी थीटा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम है, वही करना और तो कुछ करना नहीं। तो 9 प्लस आर स्क्वायर को क्या लेट कर लें टी, तो 2r dr इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, और थीटा का कोई भी यहाँ पे है नहीं, तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी पहले कर लो 2π/3, वो एक्सप्लिसिट वाला जो मैंने आपको लॉजिक बताया था ना उससे, तो दिस इज 2π/3 एंड यहाँ पे देखो क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी √t, देन आपके पास r dr विल बी इक्वल टू dt/2, ठीक। तो क्या बना ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, आप तो देखो, ठीक है, तो ये भी चला गया, तो बस क्या बचा π/3 t⁻3/2 देन दिस इज 2/3, और ये क्या बना 2π/9, और अब t की वैल्यू रखो, क्या है 9 प्लस आर स्क्वायर की पावर
3/2 और अब r की लिमिट रख दो ताकि मिस्टेक्स होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाए। 2π/9 जब आप यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 स्क्वायर 16, 16 + 9 इज 25, 5 स्क्वायर इट मीन्स 5 क्यूब विल रिमेन। देन इफ यू विल कीप योर r इक्वल टू 0 यू विल गेट 9, दैट मीन्स 3 स्क्वायर, तो हियर यू आर गेटिंग 3 क्यूब। और अब मुझे लगता है कि अब तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो। 125 - 27 पूरा सॉल्व कर लेना और फिर देख लेना कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आई थिंक अब तो कर ही लोगे। ठीक है, पूरा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, वरना पूरा आईसी का कोर्स जो पढ़ा वो बेकार ही होगा अगर हम इतनी सी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा गया है 2 मार्क्स में। अब देखो थोड़ी देर पहले जब क्लास शुरू हुई थी, ठीक है, तब आपको ऐसा लग रहा था फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट है, सरफेस एरिया तो हमें आएगा ही नहीं। यूजुअली क्या होता है 3D, जहाँ पे भी 3D सर्फेसेस की बात आने लग जाती है हम वहाँ से पहले ही भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, राइट। बट एक्चुअली द टॉपिक इज़ वेरी सिंपल। सो जो भी बच्चे स्टार्टिंग में देखेंगे ना इसको, दे विल थिंक ओ आई कैन नॉट डू दिस टॉपिक एंड दे विल स्टॉप वॉचिंग द लेक्चर। But once you will watch the whole lecture, you will see there is nothing. You just have a formula. Everywhere you are applying that formula and you are getting the answers. और अगर आपको फॉर्मूला समझ आ गया, ये क्वेश्चन आपसे लग रहे हैं, इसका क्या मतलब है? द टॉपिक इज़ वेरी सिंपल। एक फॉर्मूला है, उसी पे सारी चीज़ें डाल के आंसर निकाल देना है। ठीक है, 2019 में पूछा द एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ द पैराबोलॉइड ऑफ द पैराबोलॉइड। अब देखो यही मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ थोड़ी देर पहले, और सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन जो है वो आ गया। ठीक है, लाइंग इनसाइड द सिलेंडर, लाइंग इनसाइड द सिलेंडर एंड दैट इज व्हाट x² + y² इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जस्ट 1 सेकेंड, हाउ कैन इट बी, या दिस। अभी देखो जो हमने x² + y² + z इज इक्वल टू, सपोज हमने 0 लिखा, ठीक है, ऐसा कुछ, तो मतलब क्या है कि वो हमारे पास z इज इक्वल टू 0 जो हमारे पास पॉइंट है उससे बन रहा है। ठीक है, ऐसा हमने बनाया था उसको। अभी फ़िलहाल के लिए ये क्या बन रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, x² + y² इज इक्वल टू z - 0, तो ऐसा बन गया। ठीक, तो ये क्या है, अभी यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो कहीं और ही शिफ्ट कर दिया है पैराबोलॉइड का। ठीक है, ये कैसा बनेगा, अगर आप ऑब्जर्व करो, ये x² + y² इज इक्वल्स टू, नहीं भी नॉलेज है तो भी बन जाएगा, बट मैं आपको समझा रही हूँ, वही मिस्टेक जो अभी आप पीछे वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। ये माइनस साइन के साथ z - 8 बन रहा है, मतलब अभी कैसा बनेगा, नेगेटिव z एक्सिस पे बनेगा और डाउनवर्ड बन रहा होगा, और z इज इक्वल्स टू 8 से बनेगा। ये अभी तक जो ये ऊपर ऐसे बन रहा था, तो अभी क्या बनेगा, नीचे बनेगा ये, और z इज इक्वल्स टू 8 से बनेगा। ठीक है, तो अब जब सिलेंडर उसको कट करेगा तो आप देख रहे हो ना, सिलेंडर वाली रेडियस ही तो काउंट होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, सॉरी रेडियस आई एम टॉकिंग अबाउट, या तो यहाँ देखो z इज इक्वल्स टू 8 है, और जब पैराबोलॉइड को ये सिलेंडर कट कर रहा होगा तो ये सिलेंडर की रेडियस का तो बनेगा सब कुछ। ठीक है, तो मतलब ये जो इक्वेशन दी है ये आपको प्रोजेक्शन भी दे दिया है। अब ये तो दिया ही है, z को लिख लो 8 - x² - y², फॉर्मूला लगा दो आप। अभी मैं ऑप्शंस लिख दूंगी। ठीक है, 1 + zx दिख रहा है यहाँ पे, -2x आ रहा है, zy - 2y। थोड़ा सा स्पीड में मैं इसलिए भी चल रही हूँ क्योंकि आप इस टॉपिक में कुछ रखा नहीं है, फॉर्मूला सीख गए हो तो आई थिंक सब कुछ आ गया। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, लिमिट लगा देनी है, तो 1 + 4 r² कर दो, r dr dθ कर दो। थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2π, r की लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2। ठीक है, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 2π तो लिख ही दो क्योंकि एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर पा रहे हो। 0 से 2 यहाँ लिखो, √1 + क्या आ रहा है यहाँ पे 4r², देन r dr। तो क्या करना है, 1 + 4r² को t लेट कर लेना है, 8r dr इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रख लो 2π, लिमिट अभी एज इट इज़ रख दो √t, r dr की वैल्यू dt/8। ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू बी π/4, t⁻³ 3/2, इट मीन्स 1 + 4r² की पावर 3/2, यहाँ आ जाएगा 2/3, एंड ये बनेगी क्या, 0 से 2। सो दिस इज गोइंग टू बी π/6,
ठीक है, जब आप 2 रखोगे तो ये देखो 17 की पावर 3/2 -1। अब मैं ऑप्शंस लिखती हूँ, आपके पास क्या दिए थे। ए ऑप्शन दिया था π/2 17 raised to the power 3/2 -1। बी ऑप्शन दिया था आपको पाई 17 raised to the power 3/2 -1। सी ऑप्शन दिया था π/6 17 raised to the power 3/2 -1। एंड डी ऑप्शन दिया था π/3 17 raised to the power 3/2 -1। देखो आप कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। सो क्वेश्चंस आर कमिंग वेरी सिंपल, एक फॉर्मूला है, सारी चीज़ें उसी पे हैं, सब्सटीट्यूट करो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब देखो इसी से सेक्शन बी में एक प्रॉब्लम पूछा गया, कहाँ पे, 2020 में, ठीक है, सेक्शन बी में पूछा गया। अब यहाँ तो और भी आसान था, कुछ नहीं करना था। क्या बोला है, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं, लेट एस बी द पार्ट ऑफ द सर्फेस of the paraboloid, ठीक है, and that is equal to z is equals to 16 minus x square minus y square, which is above the paraboloid, sorry, which is above the plane, yeah, which is above the plane, and what is that plane, z is equals to 0 and d be its projection, d be its projection on xy plane। अब इन्होंने तो सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही दे दी कि डी ए डी एक्स डी वाई हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्शन लिया है, तो अब हमको दिख भी रहा है, ठीक है। एक बार मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। देन दी एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस इज, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अच्छा ये था कि यहाँ तो हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, क्योंकि ऑप्शन में क्या कर रखा था, इंटीग्रल्स ही दे रखे थे, ठीक है। और अब जिस बच्चे ने इतना सरफेस एरिया पढ़ लिया है उसके लिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2x² + y² dx dy, ठीक है। फिर सी ऑप्शन हमें क्या बोला है, फ्रॉम 0 to 2π एंड देन फ्रॉम 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4r² dr dθ, ठीक है। एंड देन डी ऑप्शन में क्या बोला है, 0 से 2π देन 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4r² r dr dθ। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर इतना आपने समझ लिया तो। अब देखो z इज इक्वल्स टू 16 - x² - y²। थोड़ा सा इसको अगर समझोगे तो ये ऐसा ही तो आपको नज़र आ रहा है, z - 16 इज इक्वल टू x² + y², राइट, माइनस साइन के साथ। तो मतलब क्या है, z इज इक्वल्स टू 16 एक पॉइंट होगा, वहाँ से इस पैराबोलॉइड को ड्रॉ किया है, राइट, ऐसा ही कुछ तो बना होगा ना। और फिर क्या बोला है, इसको अबव कर रहे हैं, बाउंडेड अबव बाय z इज इक्वल टू 0। तो अब सबको नज़र आ रहा होगा ना सारी चीज़ें कि भाई ये बन गया हमारे पास क्या, दिस इज गोइंग टू बी पैराबोलॉइड। अब z इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे पास कहाँ होगा, क्योंकि ये z इज इक्वल्स टू 16 पॉइंट है, ये z इज इक्वल्स टू 16 है, तो z इज इक्वल्स टू 0 यहीं कहीं तो आ रहा होगा, ऐसा कुछ बना होगा ना। ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये पैराबोलॉइड बना डाउनवर्ड और ये z इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से देखो ये बन रहा होगा, तो वो इसी की क्या होगा, z इज इक्वल टू 0 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो x² + y² इज इक्वल टू 16, प्रोजेक्शन भी तो मिल गया। तो कुछ कुछ चीज़ें आप समझ सकते हो, और ज़्यादातर वो पैराबोलॉइड स्फीयर इसी पे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े से आसान होते हैं समझने के लिए, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है, मैंने आपको समझाया ना क्या, कि zx zy निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। क्या दिया है, z इज इक्वल टू 16 - x² - y², प्रोजेक्शन हमें पता लग गया, x² + y² इज इक्वल टू 16, zx निकालोगे -2x, zy निकालोगे -2y, सरफेस एरिया निकालने जाओगे क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 x² + y² dx dy। ज़रा ध्यान से देखोगे ना, अब सॉल्व मत करने चले जाना, इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा एक नज़र जो है वो ऑप्शंस पे रखो, कितना सॉल्व करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। अब आपने सरफेस एरिया पढ़ा है तो जैसे ही क्वेश्चन देखा, यू गॉट दैट मच एक्साइटेड दैट यू आर सॉल्विंग द होल क्वेश्चन, एंड वंस यू गॉट द आंसर, नाउ यू आर लुकिंग एट द ऑप्शंस, and now you are thinking, oh my god, I have solved the whole question, but they just have asked about the integral. So always keep an eye on the options, they will get you an idea ki how much you have to solve. Okay, so see, A option is correct. Now since projection is this, so we can convert it into polar form na, 1 + 4r²,
r dr d theta, limit is going to be from 0 to 2 pi then 0 to 4. Which option is correct? D. यहाँ पे r मिसिंग है और यहाँ पे 2 है, इसलिए ये दोनों गलत है. See, the question was very simple, okay? You just have to assemble the things at the right place. If you have assembled all the things at the right place, you will definitely not get a wrong answer. ठीक है. एक क्वेश्चन और पूछा गया है 2020 में ही, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो फिर फाइनली इस टॉपिक की कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी. 2020 में और सेक्शन ए में पूछा है ये हमारे पास 2 मार्क्स में. ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं. लेट एस बी द पार्ट ऑफ द कोन z square is equals to x square plus y square between the planes z is equal to 0 and z is equals to 1. then the बेसिकली ये सरफेस एरिया का क्वेश्चन नहीं है, सरफेस इंटीग्रल का है. ठीक है, वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल. और उस वक्त क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर कैलकुलस जो थी वो सिलेबस में थी, तो सरफेस एरिया सरफेस इंटीग्रल वहाँ दोनों चीज़ें ही हम लोग पढ़ाते थे, बट दोनों में कुछ बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेम ही है. बस एक चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है, क्या है वो बताती हूँ. ए है बी एंड सॉरी पाई, बी ऑप्शन है आपका पाई बाई रूट 2, सी ऑप्शन है आपके पास पाई बाई रूट 3 एंड डी ऑप्शन है पाई बाई 2. अब क्योंकि सरफेस इंटीग्रल बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई फंक्शन होगा ना जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे ओवर एनी सरफेस, तो बस वही हमको करना है. जैसे हम डबल इंटीग्रल में क्या करते हैं, कोई फंक्शन दिया होता है उसको हम किसी गिवन रीजन पे इंटीग्रेट करते हैं, वैसे सरफेस इंटीग्रल क्या होगा, एक इंटीग्रल गिवन होगा, एक सरफेस होगी, उस सरफेस पे हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बस, और फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा. तो अब मैंने बोला दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है. कैसे, ज़रा वो समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखो आप अभी अगर मैंने आपको बोला, क्या बोला मैंने, कि ये हमारे पास अगर ऐसा लिखा हो एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड डी एस, इसको हम बोलेंगे क्या, दिस इज कॉल्ड एज आर सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है. ये जो है अब एस, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 1 प्लस जेड एक्स होल स्क्वायर जेड वाई होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, डबल इंटीग्रल पढ़ाया था. तो अब डी एस है, तो डी एस का मतलब क्या होगा, ये इंटीग्रल्स हट जाएंगे तो ये डी एस आ जाएगा. तो बस आपको ये चीज़ रिप्लेस कर देनी है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, देन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जेड एक्स होल स्क्वायर प्लस जेड वाई होल स्क्वायर, देन यू हैव डी एक्स डी वाई. ठीक है, अब जैसे थोड़ी देर अगर याद करो तो हमने एरिया वगैरह पढ़ा था ना, इसको हम क्या बोलते थे, एरिया बोल देते थे. सॉरी, अगर यहाँ डी एक्स डी वाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे, एरिया बोलते थे. ठीक, और अगर हम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई लिख दें तो ये क्या बन जाता था, डबल इंटीग्रल बन जाता था ना. डबल इंटीग्रल तो खैर ये भी है, बट ये डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन बन गया ना, किसी डोमेन पे हमको करना है. तो वही हाल यहाँ पे, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला था डबल वाला, और ये इधर बना दिया तो ये सरफेस इंटीग्रल हो गया. ठीक है, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल डबल जैसा ही. तो वही चीज़ यहाँ पे अब डी एस लिखा है, डी एस की वैल्यू तो आपको पता है, रख दो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जेड एक्स होल स्क्वायर प्लस जेड वाई होल स्क्वायर एंड देन हियर यू हैव डी एक्स डी वाई. ठीक है, और अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये जो कोण है वो z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1 के बीच में बात कर रहे हैं. ये कोण होगा, ये z इज इक्वल टू 0 हो गया, z इज इक्वल्स टू 1. तो एक चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हो ना कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसको यहाँ पे रख दो, काम हो गया आपका. तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ रखो जरा चीज़ें, 1 प्लस जेड एक्स निकालने जाओगे तो पता है ना यहाँ पे 2x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा. तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, फिर यहाँ पे जब रखोगे तो क्या आएगा, हेयर यू विल बी गेटिंग वाई स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब आपने क्या करना है, चीज़ें रख देनी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ऑफ, देखो जब आप एलसीएम ले लोगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बनेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, डी एक्स डी वाई, तो देखो सिर्फ रूट 2 बच रहा है ना हमारे पास, रूट 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई,
और अब आपको पता है कि भाई जब z इज इक्वल टू 0 प्लेन जो है वो इस कोण को कट करेगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या बन रहा होगा, सर्कल ही तो बन रहा होगा। और रेडियस कितनी, रेडियस 1 का बनेगा। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया ना। तो ये जो √2 आया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, यहाँ पे सारी चीज़ें सब्सटीट्यूट कर दो। √2, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई, आर की वैल्यू 0 to 1, आर क्यूब डी आर डी थीटा बन गया यहाँ पे। और अब आप अपना आंसर निकाल सकते हो। करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ देखो √2 2 पाई आ जाएगा, r टू द पावर 4/4 आ जाएगा, 0 to 1। ठीक है, तो दिस इज 2√2 पाई एंड 1/4 मिला। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो पाई/√2 मिल रहा है देखो हमको। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या गिवन थी ऑप्शन हमारे पास। वेयर इज द क्वेश्चन, ये रहा पाई/√2, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो बस ये था सरफेस एरिया से रिलेटेड आपका टॉपिक। अब थोड़ा सा लेंथ ऑफ द कर्व समझ लेते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कर्व दिया होता है और उसमें हमको पूछते हैं कि लेंथ ऑफ द कर्व बता दो। बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मूला बेस्ड है वो भी। अगर आपको लेंथ ऑफ द कर्व निकालना है तो आप एक काम करो, क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx, क्योंकि कर्व की बात कर रहे हैं ना, तो हम कहाँ पे होंगे, हम 2D पे होंगे ऑब्वियसली। तो अगर आपको लेंथ ऑफ द कर्व पूछते हैं तो आप एक काम करो, x की लिमिट फ्रॉम a to b एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx कर दो। अगर आप y को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कैसे, एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और यहीं पे आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज भी हो सकता है। कैसे, आप इसको अगर आप यहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर पाए, अगर आप x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर पाए तो क्या करो, y की लिमिट लगा दो फ्रॉम c to d एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx/dy होल स्क्वायर dy। बस इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें ये फॉर्मूले जो है वो आपको क्या देंगे, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द कर्व। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं डिस्कस कर देती हूँ तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि लेंथ ऑफ द कर्व से कैसा क्वेश्चन आता है। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन दी क्वेश्चन। और ये 2015 में आया है, तब से पूछा भी नहीं गया, तो दैट्स वाई थोड़ा सा आउटडेटेड टॉपिक है, बट स्टिल देख लेते हैं। लेट एल बी दी, क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। लेट एल बी दी लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द कर्व और वो कर्व हमें क्या दिया है, यहाँ पे अपने आप ही बोल दिया है कि x इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ वाई बिटवीन दी लाइन्स, और वो लाइन्स क्या दी हैं आपको, y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, वेयर x ऑफ y सेटिस्फाइज, क्या बोला है। अब देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं करनी थी, क्योंकि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप दे रखी। देखो यहाँ तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय वाई, एंड एक कंडीशन दे दी x ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। देन आपको पूछी है वैल्यू ऑफ l। ठीक है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, और 2015 में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा है। तो अभी तो फॉर्मूला बताया, l की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx/dy होल स्क्वायर देन dy, और यहाँ पे आपको y की तो लिमिट भी दे रखी है 1 to 3, रख दो बस 1 to 3, then square root of 1 plus y square plus y to the power 4, and this is going to be your y square and dy। तो अब देखो ये क्या बनेगा, l जो बना वो 1 to 3 स्क्वायर रूट ऑफ क्या बना, जब हम एलसीएम ले लेंगे। अब देखो जब एलसीएम लोगे तो 1 + 2y स्क्वायर आ जाएगा, 1 + 2y स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास y स्क्वायर dy। और अब देखो न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है ना क्या, कि ये y स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है डिवाइड बाई y स्क्वायर dy। तो l की वैल्यू क्या आ गई, 1 to 3, दिस इज योर y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, दोनों चीज़ें हट जाएंगी, dy। अब क्या करना है, 1/3 y प्लस 1/y dy, देन y स्क्वायर बाई 2 प्लस ln y एंड 1 to 3। ठीक है, लिमिट लगा देनी। तो यहाँ देखो 9 - 1 8, 4 आ जाएगा, ln 3 ln 1 0 होता है, तो 4 प्लस ln 3। अब आप ln 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से रख के 4 में ऐड करके और आंसर लिख देना, तो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो बस आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं फॉर द लेंथ ऑफ पोर्शन ऑफ अ कर्व, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो बस ये था हमारा आईसी का कोर्स। आई होप जिन बच्चों ने इसको डे 1 से फॉलो किया हो उनको इस कोर्स से कुछ हेल्प मिली हो, एंड आई हैव ट्राइड टू डिलीवर ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, ऑल दी क्वेश्चंस दैट आई हैव। बट अब क्या होगा, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, जो भी टॉपिक होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बहुत जल्द दूंगी। बट जैसे जैसे वो टॉपिक चलता रहेगा, तो अब मैं क्या करूँगी, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन है, नहीं है तो वो ज्वाइन कर लो। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो डेली भेजती रहूँगी, ताकि आपकी आईसी की जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे, ठीक है। सो आई जस्ट होप दैट दिस कोर्स हैज़ हेल्प्ड यू, those who cannot afford all those, the expensive fees of the different coaching institutes, either offline or online. But I hope इस कोर्स से अब अगर आप एक काम करना, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इंटीग्रल कैलकुलस, एक बार उनको लेके बैठना। ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटीग्रल कैलकुलस। नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन विल बी देयर विच यू आर नॉट एबल टू सॉल्व। ओके, जस्ट ट्राई इट वंस, एंड फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओ कि अगर कुछ और टॉपिक है जो आपको चाहिए, या नहीं हो रहा है आपसे कुछ, बट जहाँ तक मुझे लगता है इफ़ यू विल ट्राई यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। ओके, so that's it for this course, and do share your feedback in the comment box that how you liked this course, and any kind of suggestion that you want to give about the lectures. आप, मुझे पता है एक सजेशन जो बहुत कॉमन है, जो आप में से सबका आएगा कि लाइव क्लासेस ले लो। I will try to take the live classes, but there are few problems due to which we are just uploading the lectures. So I hope थोड़ा सा भी manage कर लो. Within 2 or 3 months we will try to go for the live sessions, but it will take a little more time. So just watch these lectures. Other than this, if you have any suggestion, then you can just give it in the comment box, but do share the feedback of this course. Okay, I just want to know that whether this course is helping you or not, and let's see what is going to be the next course. Very soon I'll be sharing the information with all of you. Okay, so thank you so much for all your support.